الحمد لله الحمد لله واحد القهار عزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. Alhamdulillah, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He has blessed us with another day of Eid, that we have, some of us already joined, some of us already enjoyed the Eid al-Fitr, which was right after the month of Ramadan, and I see the same faces again, and some are here, some are not here, and this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He allow us and gave us another opportunity to come for Salatul Eid. And what is Eid? Eid is a celebration for the Muslims. And what is the secret behind this Eid al-Adha, where we make sacrifices of animals? What is this action that we do? Why do we sacrifice? What is the purpose behind it? It's Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that your sacrifice does not reach me, your blood that you spill does not reach me, the meat that we sacrifice, the meat that we give out does not reach Allah subhanahu wa ta'ala, but only reaches what is inside your heart. What is your intent? What is your purpose? What intention that you sacrifice with? That what reaches Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of any of the sacrifice that you're making, but is looking into, is checking out the hearts, which intention, which purpose that we are sacrificing the animal for. And Eid al-Adha is to commemorate the sacrifice of Ibrahim alayhi salam, as we know. And Ibrahim, the sacrifice of Ibrahim alayhi salam was very great in eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and was very precious in eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And in order to remember his sacrifice, he loved us so much that he allowed us to do the same act of Ibrahim alayhi salam. And if you pick up the Hajj, as we know, the 5 pillars of Islam, right? The first is a person says Shahada. When he becomes Muslim, he says Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. That's what first thing is required. As soon as he accepts Islam, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, the second thing that becomes obligated on him is 5 times salah that he has to perform. And the third thing that becomes obligated on him when the month of Ramadan comes, he has to fulfill the 30 days of fast of month of Ramadan. Once person is able to do that as well, then what comes upon him is zakat. And if he has enough wealth that he has to give certain amount of zakat, certain percentage that he has to give in path of Allah. And then the 5th pillar is Hajj, Umrah and Hajj, that he has to perform. If he's capable and he has enough means, he has to perform Hajj. What is Hajj? Hajj is just the same, as I mentioned, is the sacrifice of the family of Ibrahim alayhi salam, including Ibrahim alayhi salam, the sacrifice that his family has made. That is, in eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, was the most beloved thing, most beautiful thing that was performed for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. There was no worldly means, there was no worldly gain, but just to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And the entire Hajj is it's the story of Ibrahim alayhi salam and his family, and the sacrifice of his family, and the entire Hajj is. And sacrifice and Eid al-Adha is the same thing, is that we are remembering and commemorating the sacrifice of Ibrahim alayhi salam. What Ibrahim alayhi salam was to Allah subhanahu wa ta'ala. They said Ibrahim alayhi salam was Khalilullah. He was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, and a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And a poet, he gives a description of friend. What is friend? He said a friend is such that person that his friendship and his love intervenes into his vein,
And when he's quiet, he's only constantly pondering over his friend. When he speaks, he only speaks of his friend. That's what Allah subhanahu wa ta'ala was to Ibrahim alayhi salam. And every time Ibrahim alayhi salam did, one thing that he always established was the tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And he always talked about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He denied every single thing from the young age to end of his life. That he from his young age he had the understanding to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That he debated and argued with his father and the people of his town, of his village. That he took a stand in the age of they say the age of 10 or 13. He started questioning the oneness of Allah. I started questioning the different idols and different customs that was going around Ibrahim alayhi salam. And that's what's important from us. That's what we learn from Ibrahim alayhi salam, is to research, is to find out that what I have to believe. As Muslims, we have to understand as ourselves that we have to research. We should have the same concept that Ibrahim alayhi salam had. That once he started researching, that they would worship different idols, and when he reasoned into those idols, that these idols are made out of a person's by person's hand, and is made out of stone and rocks, and they worship to this idol, and they have such awe to this idol, which does not benefit anything. They cannot, if a fly sits onto it, cannot move a fly from themselves, and they put food in front of these idols. And there's no way that they're benefiting from the food. Instead, the rodents are taking the food away from them. And when he broke the idols, that's what he questioned them. That's what he would question before he broke the idols. And after he broke the idols, he said, why don't you ask the big God that you have created by your hands? Why don't you ask them that who destroyed the small gods, the big God that was who destroyed these idols? Why don't you ask them? So when he reasoned up with them, when he debate with them, bring them to their understanding, they knew that this made out of our own hands. These are stones. They would not speak. So that's what he established. He started researching, and he started finding out. And it said in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that he started looking at different concept that was different creation of Allah subhanahu wa ta'ala. They started pondering over the universe. That he would wake up and he said the sun could be my God, could be ilah. But when he sees that the sun is being overtaken by the moon and the night, and he said this cannot be my Lord, that is being overtaken by some other thing, which is moon. And he said, then he looked at the moon and he said, this could be my ilah. But he said, the day comes in, the sun takes over the moon. Then he will look at the stars, maybe the stars, but then stars being overtaken. Then he come to a conclusion, and he said, there's ilah, but I cannot see, which is Allah subhanahu wa ta'ala. And he denied all the different gods and different customs, and he denied each one of them. And because of this, and that was one of the biggest sacrifices at his time, that when he denied everything, the people became angry. Just like when you start researching and you come out with something new, they start this and if it makes sense, if it's bothering them, if it's bothering their forefathers' concept and their thinking, it bothers the people around them. And they said, and they started torturing Ibrahim alayhi salam, to extend that they created an immense fire. They created an immense fire to throw Ibrahim alayhi salam because of what he was preaching, that he was preaching the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. That now it wasn't just that he was just preaching oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that he was determined upon the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. When he was determined upon oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him the gift of Nabuwah. And when he got the gift of Nabuwah, that what bothered the people around him, that this individual is constantly bashing our lords, our deities that we believe in. And in order to punish him, they have no reason. They cannot reason with you with debates
with questions or arguments, what's the next conclusion that comes to a human mind is to destroy the individual. And that's what they try to do with Ibrahim alayhi salam. That they create the king of that time ordered to create such a fire that is so immense that no humanity have ever created before. They said that the fire was burning for 40 days. That's how immense the fire was created, and that's how huge the fire was. And they had no way, and once they created the fire, they had nowhere to throw Ibrahim alayhi salam into the fire. And and he had they didn't know what to do. So Shaitan came into the human being, and he gave ideas to build a canopy, which will toss Ibrahim alayhi salam into the fire, because people could not get close to the fire. A bird could not fly over the fire. As if any bird would fly, would roast up and fall onto the ground. That's how that's how huge fire was created. And now Ibrahim alayhi salam, and they started building the canopy where they will toss Ibrahim alayhi salam into the fire. And reason I mentioned the story in this moment, now Ibrahim alayhi salam is captured and he's being thrown into the fire. At this moment, they say the angels of rain, angels of mountain, Jibreel alayhi salam himself, who is the leader of all angels, the most powerful angel, all these angels, they came. He said, give us the order, we could extinguish this fire. Give us the order, we could destroy this nation. And they're coming one by one, asking to help Ibrahim alayhi salam. Just imagine you're in some trouble. You're in some trouble. Cop pulls you over. Another cop pulls up. He said, you need some help. You'll be like, yeah, of course. Can you get? Of course you would ask for help, or any trouble that you're in, that you would right away would ask. Anybody would come to help you. You would ask. You need a tire change, and someone someone helps you out. That, can I help you? You would say, of course, please help me. So here the angels of rain, angels of mountain, all these great angels are showing up. Jibreel alayhi salam himself is showing up and asking Ibrahim alayhi salam for help. As I mentioned, what's the definition of Khalil? What is Khalilullah? What is a friend of Allah? At this moment, Ibrahim alayhi salam could have taken help, that he's being tossed into the fire. He's being put into the canopy, and he's just, any second they could toss him into the fire. At this moment, and he says, Allah is aware of my condition. The angels, of course, He's aware of everything. Of course, He's aware of your condition. And so that if Allah subhanahu wa ta'ala is aware of my condition, so then I do not need the help of the creation. I do not need the help of the creation. If the Creator is aware of the situation, then I do not need the help of the Creator. And he did not take the help of the Creator. Just as I mentioned, the connection that he had, he constantly thinking of his friend. A Khalil is constantly thinking of his friend, and the love of Allah subhanahu wa ta'ala is into his vein, and into his body, into his blood, into his heart. And he's constantly thinking of him. He only speaks, when he speaks, he only speaks of his friend. At this moment, he said that if Allah is aware, then I do not need help of His creation. And when he was tossed into the fire, at this moment, no help, and he's being thrown into the fire with full belief that Allah subhanahu wa ta'ala could save me or destroy me. It's up to Him. My life is for Allah. Every moment of my life is for Allah subhanahu wa ta'ala. At this moment, he's being thrown into the fire. And as soon as he goes into the fire, Allah subhanahu wa ta'ala gives the order to the fire. O fire, become cool upon Ibrahim alayhi salam, and become peaceful upon Ibrahim alayhi salam. And the people saw that those people that threw Ibrahim alayhi salam into the fire, that the clothes that he was wearing was burned, the robe that he was tied with was burned, and a beautiful clothing was brought from Jannah, and he was shrouded in, and he was wrapped in. And people, they saw this miracle of Ibrahim alayhi salam and the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala, that the fire where they're supposed to burn is not burning Ibrahim alayhi salam. It's not burning Ibrahim alayhi salam. That's what really required for us, is to have immense tawakkul and immense belief in Allah subhanahu wa ta'ala, in order to reach that level that we, even though we're in trouble, but we just know that Allah subhanahu wa ta'ala, I read my dua, and Allah subhanahu wa ta'ala will help me.
And that's what the Sahaba have learned from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The immense tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. That they weren't worried of anything. I'll mention a small story from the life of the Sahaba. Is Anas bin Malik radiyallahu an, and he was in the time of Hajjaj bin Yusuf. As we know, Hajjaj bin Yusuf is one of the cruel Khalifa that were to come, or the governor that came into to Makkah, Medina, and killed many scholars, many Sahaba, and he shed blood of Sahabas and the ulama and great people. And Hassan bin Malik was also against Hajjaj bin Yusuf. He did not like his act. He did not like the way he was conducting himself. He was a cruel king. He was a cruel person. So Hajjaj bin Yusuf was after Anas bin Malik, because Anas bin Malik is one of the oldest companions that were alive at that time, and people had immense love for Anas bin Malik. And he was a great Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he came at the age of 10 in the khidmat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The mother came and dropped him off at the age of 10. He said he will stay with you. He will run errands for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he lived later on till in the time of Hajjaj bin Yusuf. So one day Hajjaj bin Yusuf was fed up with Anas bin Malik radiyallahu anh. He ordered his soldiers, go capture Anas bin Malik and bring him to me. He said, today, that's it, I'm going to finish him today. So the soldiers, they go to his house, and they said that, Amir al-Mu'mineen, he's calling you. The Khalifa is calling you. He said, who Amir al-Mu'mineen? He didn't accept him as Amir al-Mu'mineen. He said, who's Amir al-Mu'mineen? Is Hajjaj bin Yusuf is calling you. They knew he's a Sahabi. The soldiers, they knew that he's a companion of the Prophet ﷺ. They didn't want to disrespect him. He said, please just come with us. If you don't, we'll get in trouble. We'll get in trouble. Just come with us. Just for our sake, just come with us. We don't want to, push you around. Just, come with us. He said, okay, let's go. So then he goes in front of Hajjaj bin Yusuf. I'm mentioning the tawakkul of the Sahaba, the reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, the belief in the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You see, now Hajjaj bin Yusuf brought in front of Anas bin Malik is brought in front of Hajjaj bin Yusuf, and Hajjaj bin Yusuf is smiling, and he's swinging his sword around, and at this moment, and Anas bin Malik is standing calm, no reaction. So Hajjaj bin Yusuf, out of mockingly, he says that who's going to save you today? Who's going to save you today from my wrath and from my punishment? And Anas bin Malik, and he said that you cannot even hurt me a single bite of a mosquito. He said, you cannot even hurt me for a single bite of a mosquito. Hajjaj bin Yusuf is like, he's surprised. He started laughing. He's like, what do you mean I cannot? There's no barrier, you have no army, nothing, and you're in my kingdom, and I could just sever your head. There's no way that, more or less. He said, no, not a single harm you could bring to me. And he said, why do you say this? He said, I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you read this certain dua in the morning, nothing can harm you till the evening. And if you read it in the evening, nothing can harm you till the morning. He said, I have read that dua. So Hajjaj bin Yusuf was smart, and he said, what is that dua? Tell me. And he said, I will not tell you, because he knew it. I will not tell you. It's at that moment, he said something just great. Hajjaj bin Yusuf sat back in his throne, and all of a sudden his face changed, as if some fear came upon him. Someone is about to attack him. And he told him, get him out of my kingdom. And they got him out of the kingdom. And then people, they asked him that you were so eager to kill him, and you were after Anas bin Malik. What happened to you all of a sudden? You let him go. And he said, as I was pointing my finger towards Anas bin Malik radiyallahu anh, it was as if there was a line there was two lines on his shoulders. He said that if I would point, they would roar at me, and I was fearful for my life that if I do anything, those two lines will come and attack me. And that's what I'm trying to get to you: the immense belief
an immense tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, that he read that dua and he said, Allah will protect me till the evening, nothing will harm me till the morning. And that's what the same belief that we have to bring, and that's what this Eid al-Adha is the immense sacrifice and immense belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and that's what should we learn from the story of Ibrahim alayhi salam, have immense love of Allah subhanahu wa ta'ala and immense tawakkul of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la nazira lahu wa la mithla lahu wa la mithala lahu. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق. बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए काम और इनाम के एतबार से दो आलम पैदा कर रखे हैं। एक आलम आलम दुनिया है और दूसरा आलम आलम आखरत है। आलम दुनिया ये काम का आलम है और आलम आखरत इनाम का आलम है। गोया कि ये दो आलम अल्लाह तबारक व तआला ने कायम कर रखे हैं। इंसान के काम के लिए, इंसान के अमल के लिए दुनिया का आलम बनाया है और इंसान के फ़ज़ल और इनाम के लिए आखरत का आलम बनाया है। इसलिए दुनिया के आलम को दारुल अमल कहते हैं और आखरत के आलम को दारुल फ़ज़ल कहते हैं। चुनांचे दुनिया में इंसान महज अमल के लिए पैदा किया गया है, उस अमल के नतीजे का इंसान ज़िम्मेदार नहीं है। भले वो तकवीनी अमल हो, भले वो तशरीई अमल हो, यानी इंसान की आम दुनिया की ज़िंदगी और कायनाती तसव्वुर के साथ उस काम का ताल्लुक़ हो, उसमें भी नतीजे की आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप सिर्फ़ अमल के ज़िम्मेदार हैं। मसलन तकवीन दुनिया की में आप खाना खाते हैं, आप खाना खाने के ज़िम्मेदार और पाबंद हैं, भूख मिटाने के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। पानी पीने के आप पाबंद हैं, प्यास मिटाने के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। सोने के आप पाबंद हैं, लेकिन नशात और चुस्ती हासिल करने के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ में ले रखी है। आप खाना खाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भूख मिटा देते हैं। आप पानी पीते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला प्यास मिटा देते हैं। आप सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला थकावट को हटा देते हैं। तो गोया कि जितने भी तकवीनी उमूर हैं,
आप खेती बोने के लिए बीज डालते हैं, काश्तकारी करते हैं, उसके तमाम आदाब व शराइत बरूकार लाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला बीज को उगा देते हैं। बीज को बो देना आपका काम है, उसको उगाना अल्लाह तबारक व ताला का काम है। मियाँ बीवी का मिलाप आपका काम है, औलाद अता कर देना अल्लाह तबारक व ताला का काम है। गोया कि ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, उन शोबों को उठा के आप देखें, आप सिर्फ अमल के ज़िम्मेदार हैं कि जो ज़िम्मेदारी आप पर लगाएगी आप वो करते हैं। भले उसका ताल्लुक़ ग़िज़ा के साथ हो, भले दवा के साथ हो, लिहाजा आप दवा खाने के ज़िम्मेदार हैं, शिफा हासिल करने के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। सारी ज़िंदगी दवा खाते रहें, सारी ज़िंदगी आप इलाज करवाते रहें, शिफा ना हो, आप पर कोई गुनाह नहीं है और इसी तरह दुनिया से चले गए तो ये ख़ुदकुशी नहीं है, बल्कि आप अपना काम करते रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला को अपना काम करना चाहिए था। आपने दवा खाई, अब अल्लाह तबारक व ताला का काम शिफा देना है। तो गोया कि दवा आप डॉक्टर से लेते हैं, दवा तबीब से लेते हैं और शिफा अल्लाह तबारक व ताला से मांगते हैं। तो देखो, तकवीनी जितने उमूर हैं, तमाम शब व रोज़ के तकवीनी उमूर में आप सिर्फ अमल के ज़िम्मेदार हैं, उसके नतीजे को ज़ाहिर करने के आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तशरीह जितनी इबादतें हैं, कहीं नमाज की इबादत है, कहीं रोज़े की इबादत है, कहीं ज़कात की इबादत है, कहीं हज की इबादत है, कहीं खैरात की इबादत है, जितने इबादात हैं उन इबादात को करना, उन इबादात को आदाब व शराइत के मुताबिक अदा करना आपका काम है, उसको कबूल करवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप नमाज पढ़ने के ज़िम्मेदार हैं, अब कबूल अदम कबूल ही अल्लाह तबारक व ताला की ज़िम्मेदारी है। अब आप कह के नहीं आप कबूल भी करवाएं, ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के बस में वही दे रखा है जो उसके इख्तियार में है। इंसान के इख्तियार में तो 5 वक्त की नमाज अदा करना है, अब कबूल करवाना ना करवाना इंसान के इख्तियार में नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने बंदे पर यह बोझ ही नहीं डाला कि तुम ज़रूर कबूल ही करवाओ। उसने हुक्म दे दिया अकीमुस्सलात, नमाज अदा करो। अब बंदा नमाज अदा करे, जो शराइत आदाब शरीयत और सुन्नतें बता दिए हैं वो नमाज अदा करके अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है। अब उसको कबूल वो करता है या नहीं करता ही उसका काम है। हाँ, लेकिन चूँकि आप जैसे दुनिया की चीज़ों में प्रॉपर तरीके से आप खाना खा लेते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह भूख मिट जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप पानी पी लेते हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि प्यास मिट जाएगी और मिट भी जाती है, भूख ख़त्म भी हो जाती है। आप प्रॉपर नींद ले लेते हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सुबह उठूँगा तो बिल्कुल फ्रेश होगा और वाकई आप फ्रेश होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप नमाज जब पूरे आदाब और शराइत के साथ प्रॉपर अदा कर लेते हैं तो आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि उसने कबूल कर ली होगी और यकीनन वो कबूल कर भी लेता है। रोज़ा आप शराइत के मुताबिक अदा कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व ताला यकीन उसको कबूल कर भी लेता है। तो मालूम है कि ये दारुल अमल है, दारुल अमल है ये दुनिया, इसमें हमारा काम अमल करना है। अब अमल इखलास के साथ करता है या अदम इखलास के साथ करता है, ये बंदे का फ़ेल है। अगर इखलास के साथ करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला मामूली अमल को ज़्यादा कर देते हैं, और अगर आदमी इखलास के साथ करेगा तो बड़े से बड़े अमल को भी अल्लाह तबारक व ताला सिफर कर देता है। क्योंकि अमल जो इंसान करता है उसकी रूह, उसकी जान वो इखलास है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है। जैसे इंसान जब खाना खाता है, खाना अपनी जिस्म व जान के इखलास में खाता है, वो अपनी जिस्म व जान के साथ इतना मुखलिस सिंसियर है कि अगर मैंने खाना ना खाया तो भूख की वजह से मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, पानी ना पिया तो मैं मर जाऊंगा। तो अपनी जिस्म व जान के साथ इतना सिंसियर होता है कि अच्छी से अच्छी हेल्दी फूड खाने की कोशिश करता है, और जब इस सिंसियरिटी के साथ खाना खाता है तो खाना वाकई उसको नफ़ा भी देता है, उसको फ़ायदा देता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जब इसको अपने ईमान के साथ भी ऐसे ही ताल्लुक़ हो जैसे इसको अपनी जान के साथ है, तो ईमान के साथ भी जब ऐसा ताल्लुक़ होता है तो ये जब नमाज अदा करता है तो इतने इखलास के साथ करता है कि अल्लाह तबारक व ताला यकीन उस नमाज को कबूल कर लेते हैं। तो जैसी सिंसियरिटी इंसान को अपनी जान के साथ
अपने माल के साथ, ऐसी बल्कि उससे बढ़कर सिंसियरिटी अगर वो अपनी ईमान के साथ होती है, अपनी आखिरत के साथ होती है, तो दुनिया की जितनी इबादतें बंदा उसी सिंसियरिटी के साथ करता है। चाहे सिंसियरिटी और इखलास ये असल में अमल की जान है, रूह है। अगर ये उसमें से निकाल दी जाए तो वो अमल बेकार हो जाता है, वो अकार्थ हो जाता है। गोया कि वो अमल एक लाश होता है। बज़ाहिर उसकी आँख भी है, कान भी है, ज़बान भी है, हाथ पैर भी हैं, लेकिन वो लाश किसी काबिल ना बोलने के काबिल है हालांकि ज़बान है, ना देखने के काबिल है हालांकि आँखें हैं, ना सुनने के काबिल हालांकि उसके कान हैं, क्योंकि उसमें से रूह निकल गई है। लिहाजा ये लाशा 6 फुट का पड़ा है, किसी काम का नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जब अमल बग़ैर इखलास के अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाता है, वो एक लाशा होता है कि जिसके अंदर रूह नहीं है। बज़ाहिर अमल के सारे अज्जा मुकम्मल, उसकी हैयत क़ज़ाई मुकम्मल होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कोई कीमत नहीं। जैसे एक लाश की आपके यहाँ कोई कीमत नहीं रहती, आप उसको या तो मिट्टी में दफना देते हैं, बाज़ कौमें उसको आग में जला देती हैं, बाज़ कौमें पानी में बहा देती हैं। तो गोया कि अब उन कौमों के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं, अगले जहान में उसकी कोई कीमत लगती हो तो लगे, हमारे यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं, अब इसको उठा के गड्ढे में दफन कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला के पास भी अमल पहुँचता है, वो इखलास से खाली होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको जगड़े में डाल देते हैं। गोया कि हदीस में आता है कि ऐसी नमाज जो इखलास के बगैर है, उसको मैले कपड़े की तरह लपेट कर अल्लाह तबारक व तआला नमाजी के मुँह पे मार देते हैं कि नहीं चाहिए, ले जाओ। तो मालूम है कि इखलास, यही वजह कि हदीस में आता है कि 3 ऐसे लोग पेश किए जाएंगे कि जिसकी अमल बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इखलास से खाली होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को उनकी कोई कीमत नहीं लगेगी। फरमाए कारी कुरान को पेश किया जाएगा, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला कारी पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको पूछेंगे कि मैंने तुझे कुरान की दौलत अता की और उसको तिलावत का सलीक़ा अता किया, अदायगी का हुस्न अता किया, तूने क्या खिदमत की? कहा कि ए रब्बे ज़ुल-जलाल, मैंने ये कुरान पूरे आलम में फैलाया, मैंने इसके उलूम पूरे आलम के अंदर सिखाए, पूरे आलम के अंदर मैंने इस पैगाम हक़ को पहुँचा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि नहीं, तूने ये सारे इसलिए किया था ताकि लोग ये कि तू बहुत बड़ा आलिम है, तू बहुत बड़ा फाजिल है, तू रज़ा के लिए नहीं बल्कि रिया के लिए तूने ये किया था। लिहाजा वो दुनिया में फ़क़द क़ील, दुनिया में तुझे बहुत बड़ा आलिम और फाजिल कह दिया गया, जो तेरा मतमा नज़र था पूरा हो गया, लिहाजा अब मेरे पास कुछ नहीं है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को हुक्म देंगे कि इसको औंधे मुँह जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। कुरान की दौलत जिसके सीने में, उलूम मारिफ जिसके पास, इतना बड़ा फाजिल, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इतने बड़े अमल की कीमत कुछ भी नहीं लगी, बल्कि उल्टा वबाल जान होकर जहन्नुम में गिरा। दूसरा, शहीद को बुलाया जाएगा जो बज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे तुझे मैं जिस्म जान दी, तुझे जुर्रत और ताकत दी, तूने क्या किया? कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तेरे रास्ते के अंदर शहीद होकर आया हूँ, मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दी। फरमाया कि नहीं, तूने सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि लोग तुझे बड़ा दलेर और बहादुर कहें, तुझे बड़ा जरीर कहें कि बड़ा दलेर और बहादुर इंसान है। तो फरमाया फ़क़द क़ील, वो दुनिया में कह दिया गया है, जो तेरा मतमा नज़र था कि दुनिया में आज तक तुझे बड़ा दलेर और बहादुर कहते हैं, बस वो कह दिया गया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, औंधे मुँह उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कितना बड़ा अमल शहादत का कि शहीद अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे मरने वाला, अल्लाह तबारक व तआला ज़माने देते हैं कि ये मरता नहीं, ज़िंदा रहता है, शहीद ज़िंदा है, मरा नहीं। इतना ऊंचा मुकाम, लेकिन जहन्नुम के अंदर क्यों? इखलास नहीं। और तीसरा शख्स पेश किया जाएगा जो सखी, बड़ा मालदार। कहा कि तुझे मैंने माल दिया था, तूने क्या किया? कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल, मैंने उस माल को तेरे रास्ते में खर्च किया, बेवाओं गरीबों में बांटा, वेलफेयर के काम किए, खूब मैंने तकसीम इन्फाक फ़ी सबिल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तूने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुझे बहुत बड़ा सखी कहा जाए, लिहाजा दुनिया में तुझे बहुत बड़ा सखी कह दिया गया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। हदीस में आता है कि उसको भी औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब देखिए कितने बड़े बड़े 3 अमल हैं, लेकिन इखलास से खाली है, वो अमल के अंदर रूह इखलास की मौजूद नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की उनकी कोई कीमत नहीं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसान ने अमल पेश किया और पूरे इखलास और सिंसियरिटी के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अमल अभी मुकम्मल नहीं हो पाया, तकमील से पहले पहले वो अमल रोक दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला इस इखलास की वजह से, इसकी सच्ची चाहत की वजह से उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल समझकर अजर अता फरमा देते हैं। हालांकि पूरा हुआ नहीं, कोशिश कर रहा है पूरी, लेकिन पूरा हुआ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे अमल का जो सवाब अता कर देते। अल्लाह, जैसे कि हदीस में आता है कि बनी इसराइल के ज़माने में कहत बढ़ गया, बस्ती में कहत है, लोग वहाँ से या दूसरी से हिजरत करने लगे, लोग बेचारे अपने बोरी बिस्सा बांध के गरीब गुरबा सब वहाँ पूरा गांव खाली कर रहे हैं। एक शख्स वो उस गांव का बाशिंदा वो भी जा रहा है, रास्ते में उसे एक टीला देखा, मिट्टी का टीला देखा, और उसको देखकर हसरत अफसोस से कहने लगा, काश अगर ये आटा होता, अगर ये अनाज होता तो मैं अपने पूरे गांव पर इसको तकसीम कर देता और मेरे गांव वालों को हिजरत ना करनी पड़ती। आज ये तो अपना वतन छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ हम मारे फिरेंगे, काश अगर ये आटा होता और ये अनाज होता मैं सब में बांट देता। हालांकि उसने सिर्फ एक चाहत का इजहार किया, एक अपनी सिंसियरिटी और इखलास को जाहिर किया, अमल किया ही नहीं अभी तक, इतनी बात कही, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस बात को कबूल कर लिया और वक़्त के पैगंबर पर वही नाजिल कर दी, उस शख्स को बशारत सुना दो। उसे सच्ची नीयत के साथ जब इस बात का इजहार किया है, हमने उसके नामा अमाल में पूरा एक टीला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जो सवाब अता कर दिया। हालांकि तकसीम किया नहीं है, सिर्फ सच्ची चाहत रखी है, अल्लाह तबारक व तआला इस बुनियाद पर उसको पूरा टीला तकसीम करने का सवाब दे दिया। तो देखो दूसरी तरफ जब सच्चे इखलास के साथ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे अमल का अजर सवाब अता कर देते। चुनांचे इस ईद उल-अज़हा के मौका पर हम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दास्तान इश्क व वफ़ा दोहराते हैं। उस दास्तान इश्क व वफ़ा की बुनियाद सिर्फ यही है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे इखलास और तस्लीम और रज़ा के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में अपना बच्चा पेश कर दिया। हालांकि वो ज़िबा हुआ नहीं, कहा कि ज़िबा कर, लेकिन ज़िबा हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अल्लाह के रास्ते में बच्चा कुर्बान करने का जो सवाब अता कर दिया। अल्लाह अकबर। हालांकि ज़िबा हुआ नहीं, होना तो चाहिए था कि ज़िबा जब करने का हुक्म दिया था तो फिर छुरी जब चलाई तो ज़िबा होना चाहिए था। तो क्या मतलब अल्लाह ने एक ऐसी बात का हुक्म दे दिया कि जिस बात को वो खुद पूरा होना भी नहीं देना चाहता? क्यों ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? जब कहा कि अपना बच्चा ज़िबा कर और ज़िबा करते उसे ख्वाब में देख लिया, तो ज़िबा को मुकम्मल अल्लाह ने क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम खलीलुल्लाह की दोस्ती और मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे, और इम्तिहान में टेस्ट ही लिया जाता है, और टेस्ट उस सिंसियरिटी का लेना था, उस अंदर के इखलास का लेना था कि ये इब्राहीम इसी बच्चे के लिए बुढ़ापे तक झोलियाँ फैलाता है, बुढ़ापे तक जब वो बीवी भी झोलियाँ फैलाती है, या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे, और बूढ़ा होकर कहाँ औलाद मिलेगी, बूढ़ा होकर कहाँ औलाद मिलेगी, ये फिर भी औलादे मांग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुढ़ापे के अंदर जब औलाद दे दी तो ये चेक करने के लिए कहीं ये ना हो कि बुढ़ापे की औलाद इंसान को बड़ी महबूब और मंजूर नज़र होती है, ये इसने दिल जो मुझे दे रखा था कहीं ये ना हो इस दिल को तकसीम कर दिया हो, आधा बच्चे को दे दिया आधा मुझे दे दिया हो। इसलिए अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इस बच्चे को मेरे नाम पे कुर्बान कर दो। आप देखो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाकई अपनी सच्चाई को साबित कर दिया कि नहीं है रब्बे ज़ुल जलाल, मेरा दिल तो तेरे ही पास है, तेरे साथ ही लगा हुआ है, मेरी दोस्ती सच्ची है, अगर तू इस बच्चे की ज़िबा पर खुश है तो मैं भी तेरी रजा के अंदर राजी हो जाता हूं। अब उन्होंने पूरे खलास का कदम बढ़ाया और छुरी ली और उसको ज़िबा करने लग गए। अब छुरी चला रही, चलती नहीं है, रिवायात में आता है झंझला गए जोर और छुरी को यूं फेंका, डांटा, क्या बात है तू चलती क्यों नहीं है, मैं तुझे तेज धार बना रखी सब कुछ, तू चलती क्यों नहीं है छुरी को? तो छुरी बोली, छुरी कहने लगे इब्राहीम तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा, तुझे चलाने का हुक्म दिया, मुझे कहा काटना नहीं, मैं क्या करूं? तुझे तो रब ने कह दे इसबा ज़िबा कर अपने बच्चे को, और मुझे अल्लाह ने कहा ला तज़बा, छुरी को कहा तूने ज़िबा नहीं करना। अल्लाह के इम्तिहान भी अजीब होते हैं, ये अल्लाह के रंग हैं।
कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह हर दिन अपनी अलग शान में होता है। पर ये शान आरिफ पहचानता है, हम और आप नहीं पहचानते। आरिफ पहचानने वाला वो इन शानों को पहचानता है, जिंदगी का लुत्फ लेता है, दुनिया में उसको वो लुत्फ आता है जो जन्नतों में भी ना हो, ऐसा लुत्फ उठाता है, फिर दुनिया से बेखबर हो जाता है, फिर उसको परवाह नहीं। यही वो इब्राहिम है, यही इब्राहिम है कि आग के अंदर कूद गया, ना इधर देखा ना उधर देखा, उस महबूब की दोस्ती में कूद गया, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे पाम अभी, अकल हैरान है कि यार ये क्या। तो इब्राहिम छुरी चला रहे हैं और छुरी से कहते तू काटती क्यों नहीं। छुरी कहते इब्राहिम तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे तो काटने का हुक्म दे दिया और मुझे अल्लाह ने मना कर दिया तूने काटना नहीं। तुझे कह दिया कि इस्बा ज़िबा कर और मुझे कह दिया ला तब्ज़ा ज़िबा नहीं करना। अब मैं क्या करूं, ज़िबा कर। बस अल्लाह तबारक व तआला ये जब देखा इखलास, ये जो सिंसियरिटी देखी, यार इब्राहिम ने तो उस ज़िबा के सारे असबाब मुहैया कर दिए। बस अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वनादाइना या इब्राहिम, हमने निदा लगा, आवाज़ लगाई, ए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। अल्लाह, हालांकि सच्चा क्या कर दिया, ज़िबा तो हुआ नहीं, सच्चा कैसे कर दिया। अल्लाह यही बताना चाहते हैं बंदे, काम तेरा ये है कि तुम इखलास से अमल के लिए कोशिश करना शुरू कर दे, बाकी उसके पाए तकमील तक पहुंचाना मेरा काम है। अगर पाए तकमील तक नहीं पहुंचा तो इसमें मेरी मसलत होगी, मेरी हिकमत होगी, लेकिन मैं तो तेरा अमल पूरे के पूरे अजर सवाब के साथ कबूल करूंगा। तो देखो ये है, और इसको कह दिया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। जब साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा या रसूलल्लाह मा हाज़िल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं। फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, यानी बेटे को ज़िबा करने के लिए छुरी के नीचे रखना, ये तुम्हारे जो गोया कि इब्राहिम की सुन्नत है। तो हालांकि इब्राहिम ज़िबा ने अपने बेटे को ज़िबा तो किया नहीं, ज़िबा वलद का जो है वो एक अमल, एक कार्रवाई हुई है, ज़िबा तो नहीं हुआ। और फिर उन्होंने हमेशा तो नहीं किया। और याद सुन्नत के लफ्ज़ पे अगर गौर करें, हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, सुन्नत तो अत्तरीक़तुल मसलूका फिद्दीन को कहते हैं, सुन्नत उस अमल को कहते हैं जो दायमी चलता रहे, दायमी चलता रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये ज़िबा वलद का जो कार्रवाई दिखाई थी वो तो दायमी नहीं, वो एक ही दफ़ा हुई, वो एक ही दफ़ा हुई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुन्नत क्यों कहा है। तो मालूम है कि असल में बात यह है कि ज़िबा वलद ये सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत एक और चीज़ है। वो सुन्नत क्या है, वो सुन्नत ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तस्लीम और रज़ा का जो मिजाज है, तस्लीम और रज़ा का मुकाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहा था वह इज़ क़ाल रब्बु अस्लिम। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम से कहा था अस्लिम, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे, अपने ज़ाहिर बातिन को मेरे सुपुर्द करे, तस्लीम और रज़ा के मुकाम पर फायज हो जा, ये कहा। तो उन्होंने क्या कहा था, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करता हूँ, मैं तस्लीम और रज़ा के आला मुकाम पर फायज होता हूँ। अब मेरा कौल मेरा नहीं, मेरा फेल मेरा नहीं, मेरा माल मेरा नहीं, मेरी जान मेरी नहीं, मेरी औलाद मेरी नहीं, सबको मैंने अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दिया। ये जो तस्लीम और रज़ा का ये जो मिजाज है, ये जो तस्लीम और रज़ा की जो शान है, फरमाया ये है वो सुन्नत, ये वो सुन्नत जो इब्राहिम की सुन्नत है। और ये ज़िबा वलद, बच्चे को ज़िबा करने के लिए आगे बढ़ना, ये उसी का एक नक्शा है, उसकी आला तरीन शक्ल है। इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान को सबसे महबूब तरीन अगर कोई चीज़ है तो उसको अपनी जान है, और अपनी जान से भी ज्यादा महबूब अगर है उसको अपनी औलाद की जान है। अपनी जान अपनी औलाद की जान पर कुर्बान कर देता है, खुद मौत को गवारा करेगा, लेकिन ये चाहेगा नहीं मेरा बच्चा बच जाए, मेरी औलाद बच जाए। तो मालूम कि औलाद को छुरी के नीचे लाना ये तस्लीम रज़ा की इंतहाई ऊंची शान है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की जो शान थी उसका एक आला फर्द, वो आला फर्द दिखा दिया कि देखो इसे जब मुझे अपने हवाले मेरे कर दिया, उस हवाले करने की शान ये दिखाई कि अपना बेटा भी मेरे रास्ते में कुर्बान करने को तैयार हो गया। भाई ये वो मिजाज, ये वो ज़ौक़ पैदा करने की ज़रूरत है कि मोमिन बंदा बस अपने आप को अल्लाह के रसूल के सुपुर्द कर दे,
जब देखा शरीयत ने कह दिया बस उसको कर डाला, कह दिया सुन्नत ने कह दिया उसको अडॉप्ट कर लिया। ये ना सोचा कि यार देखेंगे, सोचेंगे नहीं, इब्राहिम से सबक लो जिसे अपना बेटा कुर्बान कर दिया, बेटा कुर्बान कर दिया जो कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होता है। लेकिन ये जब कन्फर्म हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म है, हाँ पहले दर्जे में शक हुआ, जब 8 की 8 ज़िलहज्जा की रात को ख्वाब देखा तो शुबा लगा कि यार ख्वाब रहमानी है कि शैतानी है, क्या कौन सा, सारा दिन शक व शुबा में पड़े रहे, सोचते रहे पता नहीं क्या है। इसलिए 8 ज़िलहज्जा को यौम तरविया कहते हैं, शक वाला दिन। वो सारा दिन इसी शक में गुजरा और उसके बाद फिर जब सोए 9 ज़िलहज्जा की रात को ख्वाब देखा, फिर उसी तरह ज़िबा कर रहे हैं। तो उस वक्त अब सोचने लगे कि हैं ये वाकई ये रहमानी ख्वाब है, ये शैतानी ख्वाब नहीं है। ये गोया कि उनको ये मार्फत हासिल होगी, ये पहचान हासिल हो गई कि ये रहमान का ख्वाब है। इसे 9 ज़िलहज्जा को यौम आरफा कहते हैं, पहचान का दिन, कि अब पहचान लिया कि ये शैतानी ख्वाब नहीं, ये रहमानी ख्वाब है। और लिहाजा 10 ज़िलहज्जा को यौम नहर और बच्चे को लेकर ज़िबा करने चल पड़े। बस ये कन्फर्म किया कि ये शैतानी है, ये रहमानी है। बस आज बंदे को भी ये चाहिए, ये कन्फर्म करे कि अल्लाह का हुक्म है या नहीं, रसूल की सुन्नत है या नहीं। बस ये कन्फर्मेशन आपका हक है। आप ये कन्फर्म जब कर लें, हाँ अल्लाह का हुक्म है, कुरान में हुक्म है, शरीयत का तकाजा है, जब ये कन्फर्म हो जाए तो बस फिर तस्लीम और रज़ा का वो मुकाम हासिल होना चाहिए जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को हासिल हो गया। अल्लाह हो। फिर ना सोचे कि यार देखेंगे यार बड़ा मुश्किल है, सुबह देखेंगे यार, कल से इंशाल्लाह, कल से, कल कभी नहीं आती, टुमारो इज नेवर कम, कल नहीं आती कभी, कल नहीं। आज हम कल के चक्कर के अंदर उस कल के अंदर पहुंच जाएंगे कि जिस कल में अल्लाह के सामने हमें जवाब दे होना। इससे बेहतर है कंफर्म ये कर लें। आज का नौजवान व्हाट और वाई की रिसर्च करता है, ये है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को इस बात की मौका दें, हाँ बेटा रिसर्च कर लो कि कुरान में है या नहीं, ये कुरान शरीयत का तकाजा है, ये रिसर्च कर लो। जब ये रिसर्च हो गई कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, पर उसके अंदर तुम्हें फिर बाल की खाल उतारने का हुक्म नहीं। जब अल्लाह ने कहते नमाज पढ़नी है और ये कन्फर्म हो गया है, अब तुम्हें नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ के दिखानी है, अब तुम्हें पीछे हटने का हक नहीं है। ये असल में ये वो मिजाज और ज़ौक़ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको सुन्नत अबी कुम इब्राहिम कहा कि जानवर ज़िबा कर लेना, ये तो उसकी एक शक्ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की जगह पर जानवर जो है फिदिये के तौर पे पेश कर दिया। लेकिन हकीकत में इब्राहिम की दायमी सुन्नत तो यह है कि अपने आप को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर देते। आतिश नमरूद हो तो कुर्बान कर देते हैं, दूसरे मसाइल हैं तो कुर्बान कर देते हैं, यहाँ तक औलाद एक अरसा तक औलाद नहीं हो रही तो तस्लीम व रज़ा के मुकाम पर है, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे हैं। बस ये तो ये फरमाया कि ये मिजाज मोमिन के अंदर जब पैदा हो जाता है और हर साल अल्लाह तबारक व तआला इसे जानवर ज़िबा करने के नतीजे में अमली तौर पे हमें ये दिखाते हैं, जैसे जानवर छुरी के नीचे आता है और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके उसको ज़िबा कर देते हैं, वो ज़िबा हो जाता है, फना हो जाता है, उसको तभी तकलीफ होती है, तड़पता है, लेकिन अपने आप को पेश कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी ख्वाहिशात के जानवर को भी अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा और उसके हुक्म पर इसी तरह कुर्बान करना है। जब ये जज्बा बंदे के अंदर पैदा हो जाएगा, उस जज्बे पर ही अल्लाह तबारक व तआला अमल का सवाब अता कर देते, क्योंकि जज्बा देखते अल्लाह। अब जज्बा सच्चा रखें कि काश हमें मौका मिले हम सहाबा जैसी नमाज पढ़ें, काश हमें मौका मिले हम सुलेमान की तरह जो अल्लाह के रास्ते में खूब दौलतें बांटे, काश अगर मौका मिले। तो अब ये जज्बा जब सच्चा रखें, जैसे मैंने हदीस बताई, अल्लाह तबारक व तआला सच्चे जज्बे पर ही अजर सवाब अता कर देंगे। आप रात सोने से पहले सच्चे जज्बे से सोएं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठूंगा, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमा, ये पूरी जज्बे के साथ आप सो जाएं। तहज्जुद में आंख नहीं भी खुली, अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद वालों में आपका नाम लिख देंगे। जो हदीस में आता है, सैयदा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक रात उनकी तहज्जुद फौत हो गई, क्योंकि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में तो आम रिवाज तहज्जुद का था, और हमारे यहाँ तो तहज्जुद पढ़ने वाला कहते जी वलीउल्लाह है, माशाल्लाह वलीउल्लाह जी तहज्जुद पढ़ रहा है, यानी गोया कि बहुत बड़ी बात है, हालांकि उस आम रिवाज था। तहज्जुद फौत हो गई, सुबह उठे तो सारा दिन रोने में गुजरा, सदमा, रो रहे गिर गए रात को, क्योंकि तहज्जुद का वक़्त वो होता है कि बादशाहों का बादशाह चुपके से आपको बुलाता है कि आओ आज मुझसे बातें करो।
फजर की नमाज में पूरी जमात आ रही है, लेकिन यहाँ चुपके से मौका देता है, आ जाओ भाई अभी मौका है, महबूब से मुलाकातें हो जाएं। ये वो टाइम होता है। रो रहे सारे दिन, यहाँ तक कि फिर रात आ गई, सोए। जब सोए तो किसी ने आपके पाँव का अंगूठा हिलाया है, आंख खुली तो देखा सिरहाने की तरफ कोई खड़ा है। भाई क्या हुआ, कौन हो तुम? तो कहा कि वो आप तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद फौत हो रही है आपकी, इसलिए मैं आपको जगाने आया हूँ। कहा कि लेकिन तू है कौन? क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का पहरेदारी का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, पहरेदारी का निज़ाम स्ट्रॉन्ग था। तो कहा कि ये अंदर कैसे आ गया बंदा, तो है कौन? पकड़ा तो कहने लगा मैं इबलीस हूँ, मैं इबलीस हूँ और आपकी तहज्जुद की नमाज फौत हो रही, टाइम जा रहा, मैंने इसलिए जगाया आप। तो कहने के दुश्मन खुदा, तू तहज्जुद के लिए जगाने आया, तू तो सुलाता है, तू तो लोगों को भगाता है नमाजों से, तू कैसे मुझे जगाने आया? कहा कि असल में बात यह है कि कल आपकी तहज्जुद की नमाज फौत हो गई थी और आप सारा दिन रोते रहे, तो उस रोने पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नामा अमाल में 100 तहज्जुद का सवाब लिख दिया। तो मैंने सोचा इनको जगा दो, एक तहज्जुद का सवाब ले रहे, 100 का कहीं आज फिर ना ले जाए। देखो इब्लीस कितना मक्कार है, वो चाहता है कि अमल थोड़ा ही हो, गोया कि तहज्जुद खुद जगा दिया कि कहीं आज भी नदामत में रोया तो कहीं ज्यादा ना ले जाए। बस वो जज्बा जो अंदर रोता रहा कि काश तहज्जुद मुझे मिल जाता, उस बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला ने तहज्जुदें पढ़ी नहीं बल्कि पढ़ी जाने वाली भी फौत हो गई, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला 100 तहज्जुद का सवाब दे रहे हैं। आज हम अगर अपनी नमाजें और अपने तहज्जुदें, अपने नफलें और खैरातों के ज़ाया होने पर रोने लग जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला सैकड़ों लाखों नमाजों का सबब वैसे ही अता कर देगा। लेकिन हम दुनिया पे रोना जानते हैं, खालिक दुनिया के लिए रोना नहीं जानते। जब खालिक दुनिया के लिए रोना हमें आ गया, मालिक व खालिक के लिए रोना आ गया, रिज़्क़ के लिए रोना नहीं, राज़िक़ के लिए जिसे रोना आ गया, तो राज़िक़ के लफ्ज़ में रिज़्क़ का लफ्ज़ मौजूद है। राज़िक़ के अंदर रिज़्क़ का लफ्ज़ मौजूद है। जब राज़िक़ के लिए रोना हमें आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिज़्क़ हमारे कदमों में वो राज़िक़ डालेगा, ये रिज़्क़ कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं, हम रिज़्क़ के लिए तो रोते हैं, रिज़्क़ की तलाश के लिए तो रोते हैं, लेकिन राज़िक़ के लिए रोने वाला कोई नहीं। जब राज़ी के लिए रोता है तो अल्लाह तबारक व तआला जज्बे पर ही अता कर देते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जज्बा से बेटे को कुर्बान करने का पेश किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की जगह पर दुम्बा उतार दिया, उस मेंढे को ज़िबा किया। और ये मेंढा कौन सा मेंढा था? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल में ये वो मेंढा था जो हज़रत हाबील और काबील का जब झगड़ा हुआ था तो हज़रत हाबील ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए नज़र के तौर पे जो मेंढा पेश किया था, ये वो मेंढा था जो जन्नतों के अंदर कबूल हुआ और जन्नत की बागो बहार के अंदर पलता रहा, फरबा और सेहतमंद हो गया। वो मेंढा अल्लाह ने चूँकि कबूल कर लिया था, वहाँ भी चूँकि एक जज्बे की बात थी, वहाँ भी एक टेस्ट और इम्तिहान था हाबील और काबील का। उस टेस्ट में हाबील कामयाब हो गया और काबिल फेल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला वो जो इनाम के तौर पे जो कबूल किया था मेंढा, वो मेंढा इस इम्तिहान के मौके पे भी उतार दिया कि हाँ इब्राहीम भी इम्तिहान में आज कामयाब हो रहा है, लिहाजा उसकी छुरी के नीचे वो कामयाब मेंढा उतार दिया। लिहाजा उस मेंढे को ज़िबा किया जो हाबील का मेंढा जो कबूल हुआ और बहुत अरसा जन्नतों के अंदर पल के फरबा हो गया। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला फिर यूं अपनी रहमतें दिखाता है। जब बंदा अपना जज्बा सच्चा दिखाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमल को किस तरीके से ऐसी निस्बतें अता फरमा देते हैं। तो फिर एक मुट्ठी खजूरें की भी अगर उसको पेश कर दी जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे देते हैं, ये मुट्ठी की खजूरों की जो है ये ओहद पहाड़ के बराबर बनाकर अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया है। तो बस ये जज्बा तो सुन्नत इब्राहिमी सिर्फ जानवर ज़िबा कर देना नहीं है, असल ये वो मिजाज और ज़ौक़ है कि तस्लीम व रज़ा, अल्लाह अल्लाह का रसूल क्या कहते हैं ये कन्फर्म हो गया, उसके बाद फिर दूसरी कोई बात नहीं, फिर निगाह उस महबूब पे है और जो अल्लाह ने कहा जो करके दिखाएंगे। और आज तो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसने बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं। कोरोना वायरस ने, ये कोविड-19 ने आकर बता दिया अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अगर कोई सुपर पावर दुनिया में ताकत तो अल्लाह की ताकत है, सबसे ऊंची अगर कुव्वत है तो अल्लाह की कुव्वत है। दुनिया की साइंस, दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया का टैलेंट सारा का सारा फेल होकर नजर आता है। अगर ताकत नजर आती है तो एक खुदा की ताकत नजर आती है। और मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ये कमाल अता कर दिया है कि इसको घर बैठे खुदा को पाने का तरीका रसूलुल्लाह ने बता दिया है।
चुनांचे ऐसे मौके पे ईद उल-अज़हा में फरमाया कुर्बानियाँ अगर तुम ज़िबा करोगे, छुरी जब चलाओगे इस जज्बे के साथ, तो फरमाया कि अभी खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरेगा जानवर का, कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं और उसके एक एक बाल के बदले में गुनाह माफ़ कर देते हैं, एक एक बाल के बदले में एक नेकी अता कर देते हैं और एक एक बाल के बदले में एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो गोया कि जानवर की इतने ज़िबा पर अल्लाह तबारक व तआला इनामात के ढेर बंदे के लगा देते हैं और कल रोज़ क़यामत में जब पहुँचेगा तो पूरे एजाज़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वो जो सुन्नत इब्राहिमी, ये जो मिजाज इब्राहिमी है, ये पैदा करने की तौफीक अता फरमाए कि तस्लीम व रज़ा। जब अल्लाह अल्लाह के रसूल का अमर आ गया उसके बाद फिर और अमर नहीं है। अल्लाह के अमर पर मर मिटने का जज्बा जब पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सच्ची खुल्लत और सच्ची मोहब्बत और दोस्ती ऐसी अता कर देंगे जैसे खलीलुल्लाह को अता कर दी थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का खुतबा स्पॉन्सर किया है अब स्टेट न्यूयॉर्क से नादिर नागौरी साहब ने। नादिर नागौरी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी तरफ से आज का खुतबा स्पॉन्सर है। उनका हमारे इदारे के साथ ख़ास तौर पर रहम टीवी के साथ तामुन रहता है कि जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि रहम टीवी की आवाज़ पूरे आलम के अंदर पहुँचती है। उनके हक़ में भी अल्लाह तबारक व तआला इसको सदका जारिया बनाए और जो भी किसी भी हवाले से हमारे रहम टीवी के साथ तामुन करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ाहिरी बातनी दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि अल्फ अल्फ मर्रतिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को ख़त्म फरमा, या अल्लाह में ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा, या अल्लाह ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह जो मोमिन मोमिना गुज़र चुके उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी क़ब्रों को जन्नत के बाग़ बना। या अल्लाह हम में से किसी के वालदैन या वालदैन में से कोई एक दुनिया से रुख़सत हो चुका है तो या अल्लाह हमारे वालदैन की बख्शिश फरमा, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस का आला मुक़ाम अता फरमा। या अल्लाह जो अकाबिरीन उम्मत दुनिया से रुख़सत हो गए हैं या अल्लाह काबिरीन उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह भी रिसेंटली या अल्लाह हम मेरे मादरे इल्मी जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के शेखुल हदीस और चांसलर और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर या हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर रहीमुल्लाह ताला उनका विसाल हुआ। या अल्लाह हज़रत डॉक्टर साहब के दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह उनकी जन्नत फिरदौस का आला मुक़ाम अता फरमा। या अल्लाह जो इल्मी और रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात छोड़ गए हैं या अल्लाह उनके तलामिज़ा को, उनके मुरीदों और सालकीन को उस अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह उनकी दीनी खिदमात को उनके हक़ में या अल्लाह सदका जारिया बना, या अल्लाह सदका जारिया बना। या अल्लाह और भी जो भी अहबाब इस तरह दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं या अल्लाह सब की या अल्लाह दर्जा बुलंद फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर पर मेरे पीर व मुर्शद, मेरे उस्ताद हदीस हुस्नुल औलिया सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस का आला मुक़ाम अता फरमा। या अल्लाह उनकी जितने भी इल्मी रूहानी खिदमात या अल्लाह उनके हक़ में उसको सदका जारिया बना। या अल्लाह मेरे वालिद माजिद या अल्लाह मुहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी क़ुद्दस सिर्रू के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी इल्मी और रूहानी खिदमात को उनके हक़ में सदका जारिया बना। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह और भी जितने अकाबिर दुनिया भर में या अल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं या अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह अपना क़ुर्ब ख़ास उनको अता फरमा। जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शिफ़ा कुल्ली अता फरमा, सेहत व आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी मादी मानवी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमें सेहतमंद और तवाना फरमा।
या अल्लाह जो अकाबिर उलमा इकराम बीमार हैं सबको शिफा कुल्ली अता फरमा, सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहू आलिया को सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर तरह हिफाजत फरमा, उनको अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। या अल्लाह मुख्तलिफ अहवाल उन पर पेश आते रहते हैं, दुश्मनान इस्लाम या अल्लाह उन पर नज़र रखे हुए हैं। या अल्लाह शेखुल इस्लाम के कि या अल्लाह हर तरह की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ज़ाहिरी बात है दुश्मनों से उनको महफूज फरमा। या अल्लाह उनकी इल्मी और रूहानी खिदमात को या अल्लाह जारी और सारी फरमा। या अल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब को सेहत व आफियत अता फरमा, आफियत और सेहत के साथ या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके फ़यूज़ को पूरे आलम में आम फरमा। या अल्लाह उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके अलावा या अल्लाह और जितने उलमा इकराम दुनिया भर में काम कर रहे हैं, किसी भी मसलक के किसी भी फ़िरक़े के जो उलमा इकराम हैं और या मशाइख़ सिलसिला हैं, या अल्लाह जो भी अहले हक़ हैं, या अल्लाह सबको या अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल मंजूर फरमा, उनको सेहत व आफियत अता फरमा, उनके फ़यूज़ को आम फरमा। या अल्लाह हर तरह के ज़ाहिरी बातिनी फ़ितनों से या अल्लाह उनको महफूज फरमा, उनको महफूज फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह जो मांगा ये भी अता फरमा, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा। या अल्लाह तो आप अपनी मोहब्बत हमें अता फरमा, तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत अता फरमा, उन अमाल की मोहब्बत अता फरमा जो तेरी मोहब्बत के करीब ले जाने वाले हों। या अल्लाह अपने करम से हर तरह या अल्लाह आफ़ियत पूरी उम्मत को अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा दुनिया में जहाँ जहाँ मग़लूब परेशान है या अल्लाह उनको गलबा नुसरत अता फरमा। या अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा, बर्मा के मुसलमानों की को गलबा नुसरत अता फरमा। या अल्लाह इसी तरह इंडिया के मुसलमानों को गलबा नुसरत अता फरमा, कश्मीर के मुसलमानों को गलबा नुसरत अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों को गलबा नुसरत अता फरमा, सीरिया के मुसलमानों को गलबा नुसरत अता फरमा। या अल्लाह और इसी तरीके से और दुनिया के जितने खित्ते हैं या अल्लाह वहाँ पर इसी तरीके से अल्लाह अफ़गानिस्तान में या अल्लाह के मुसलमानों को गलबा नुसरत अता फरमा, वहाँ इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा। इसी तरीके से या अल्लाह चीन के अंदर ओगर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाता है, या अल्लाह ओगर मुसलमानों की किफ़ायत फरमा, दस्तगीरी फरमा। या अल्लाह उनको गलबा नुसरत अता फरमा और ज़ालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका गुलाफ़ वल आफ़ियत दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है या अल्लाह उनकी जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह लाहौर से मोहम्मद अली साहब ने दरख्वास्त की है, या अल्लाह उनकी जायज़ मुराद पूरी फरमा। या अल्लाह वो ज़ाती घर चाहते हैं, गैब के ख़जाने से उनको अपना ज़ाती घर भी अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की वुसअत कुशादगी अता फरमा। इसी तरीके से राहत परवीन साहिबा ने दुआ की दरख्वास्त की है, या अल्लाह ये भी ज़ाती घर चाहती हैं, या अल्लाह दुनिया में भी इनको ज़ाती घर अता फरमा, आखिरत में जन्नतों में भी घर अता फरमा। या अल्लाह उनकी किफ़ायत फरमा। या अल्लाह उनकी बच्चियों के नसीब रोशन फरमा। इसी तरीके से शेखुपुरा से राबिया बेटी ने दरख्वास्त की है, या अल्लाह उसके नसीब रोशन फरमा, उसके लिए नेक और अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। इंडिया से मुख्तलिफ लोगों ने दरख्वास्त की है, या अल्लाह सब की या अल्लाह दरख्वास्तों को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा। कोयटा से हुमा इसहाक ने दरख्वास्त की है, या अल्लाह हुमा इसहाक के नसीब रोशन फरमा, उसके लिए बेहतरीन नेक और अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह उसकी दीनी खिदमत और रूहानी या अल्लाह खिदमत या अल्लाह उसमें तरक्की पैदा फरमा। या अल्लाह हर तरह ख़जाना गैब से दस्तगीरी फरमा। इसी तरीके से कराची से फौजिया बेटी नेहा बेटी ने दरख्वास्त की है, या अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमा, जायज़ मुरादी पूरी फरमा। और उम्मत मुस्लिमा क़ुरबानियाँ पेश कर रही ईद अल-अज़हा की, या अल्लाह सब की क़ुरबानियों को कबूल मंजूर फरमा। और या जिन हुज्जाज किराम ने हज किया है, या अल्लाह हज की शर्फ़ कबूल अता फरमा, उनके हज को शर्फ़ कबूल अता फरमा। और जो हाजी हज के लिए नहीं जा सके और जो भी आवारजात की वजह से या अल्लाह ओपनली हज नहीं हो सका, या अल्लाह इसमें या अल्लाह हमारे गुनाहों का दखल है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी लफ्ज़ दरगुजर फरमा, ख़जाना गैब से अपने घर को फिर से खोल दे। या अल्लाह हमें फिर से अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे अतर भाई जो अतर निज़ामी साहब बीमार हैं, या अल्लाह अतर निज़ामी साहब को सेहत व आफ़ियत अता फरमा, शिफा कुल्ली अता फरमा। हमारी मस्जिद के मुस्तकिल जो है वो नमाजी हैं, या अल्लाह उनको शिफा कुल्ली अता फरमा। और जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है सब की जायज़ मुरादी पूरी फरमा। या अल्लाह हमारी अखून जामिया मस्जिद क्वींस न्यूयॉर्क, या अल्लाह इसको अजीम मरकज़ हिदायत बना, इसके तामीरी और तालीमी मराहल को पाए तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह गैब से मदद फरमा। और हमारी खानका यूसुफ चिश्तिया ज़करिया
जकरिया आरफिया न्यूयॉर्क को या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इसी तरीके से हमारे दारुल जामिया ज़करिया न्यूयॉर्क को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हमारे जामिया ज़करिया न्यूयॉर्क की या अल्लाह ख़त्म बुखारी शरीफ का जो है जलसा 8 अगस्त 2021 को है। या अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमा, भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह 6-7 साल बच्चियाँ पढ़ के आलिम दीन बनी हैं, अब उनकी ग्रेजुएशन है और ख़त्म बुखारी शरीफ आखिरी हदीस पर दर्स होगा। या अल्लाह अहबाब जमा हो रहे हैं। या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से अपनी खुसूसी रहमत और बरकत नाजिल फरमा, आफ़ियत और गैब से किफ़ायत फरमा। या अल्लाह हमारी जलसे को भरपूर कामयाबी अता फरमा, अजीम सदका जारी बना। या अल्लाह हम तमाम हाज़रीन और दुनिया भर में नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, हमारी दुआओं में शरीक हैं, या अल्लाह सबकी जायज़ मुरादी पूरी फरमा, सबकी जायज़ मुरादी पूरी फरमा। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था, या अल्लाह वो भी अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने नाम लिए हैं, या अल्लाह बाकी जिनके नाम नहीं लिए उनको आप जानते हैं। या अल्लाह सबकी जायज़ मुरादी पूरी फरमा, सबकी जायज़ मुरादी पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारे दोस्त मकबूल साहब, उनकी अहलिया सईदा मकबूल, या अल्लाह वो कोरोना के अंदर शहीद हो गई थी, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनको ज़ाहिरी बात में खूब दौलत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हमारे साथ अक़ीदत और खिदमत हमारे इदारे के साथ, या अल्लाह उसको उनके लिए सदका जारिया बना, या सदका जारिया बना। उनके आल औलाद पर खुसूसी रहमत नाज़िल फरमा, और ये कप्तान मकबूल साहब को भी ज़ाहिरी बात में बरकतें और हमारे साथ उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूल अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।